Okay, so welcome everyone. So today is a very exciting day for Change Talks, and we are live from Kolkata, and we have Arup Vaishya and Anu Mandal from Abha Creations, who are based out of Guwahati. So today, just to brief all of you about the Change Talks, what for Change Talks is, and why is it important for the communities we serve. So Change Talks is a platform where change leaders can come in and they can share their stories and how they changed and how they changed the communities and how they have drive a sustainable impact on the society through their initiatives, whatever they have. And we invite all kind of change leaders, right from the non-profit to the corporate and even the social enterprises. Also, we have created any change in the society through any possible way they have. So today we are fortunate to have Arup and Anu from Abha Creations. So just to brief on Abha Creations, so it is a handloom fabric brand which has been founded by Arup and Anu. And this brand deals with traditional silk garments, and they are trying to promote ethical shopping and intend to minimize the cloth garbage disposals on the planet. And ABBA had also engaged around 350 families in their network directly as weavers and spinners of airy fabric in Guwahati. And ABBA is also contributing towards conservation of environment, empowerment of rural communities, and bringing economic revolution. So we are very fortunate, Arup, to have you with us today, and we hope that this is our first change talk. In fact, that we are conversing with any change leaders, and right away we have many other sessions to come in future. Even in next week, we have two sessions. So let us start with today's conversation. So basically, I would like to ask you, Arup, that. What have been the problem you have witnessed in your society or in your communities, and what challenges you have faced, and how have you mitigated those challenges to bring Ava Creations in a place where it is today? Thank you, Indranil, for this opportunity to speak our mind. Actually, Ava Creation is an handloom brand promoted by Messrs. Ava and AVA Foundation. Right. We are actually promoting handloom as a loom of hope for the forest-dependent communities who reside near Deeporville Forest Area, Rani Forest Land, and Garbhanga Forest Area. So we are promoting means so natural fibers, natural dyes, and means hello, can you hear me? I think Hello. we all are muted. Yeah, yeah, you can speak. या सो हम लोगों ने एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं माइक्रो फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरा मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो रूरल और माइक्रो फाइनेंस एरियाज में ही सीमित था। तो मैं उस टाइम में देखा था कि मैंने रूरल एरिया में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग इन लोगों को तो लोन देते हैं बट लोन का इन लोग क्या करते थे कि मैंने वो कोई कुछ कमोडिटी के हिसाब से वो लोग मैंने कुछ घर के लिए कुछ एसेट खरीद लिया लेकिन वो कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं करते थे। तो और फॉरेस्ट एरिया में और ये सब सुविधा भी नहीं था माइक्रो फाइनेंस का। तो हम लोगों के माइंड में ये आया कि ये फॉरेस्ट एरिया में अगर हम लोग कुछ कर पाए, जो फॉरेस्ट के पास में जो लोग रहते हैं उसका अगर हम लोग एटलीस्ट उनका जो जीवन का लाइवलीहुड अगर हम लोग संभाल पाए तो वो लोग क्या करेंगे कि फॉरेस्ट का रक्षा करेंगे, ना कि फॉरेस्ट को ध्वंस करेंगे। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, जो फॉरेस्ट के पास में लोग रहते हैं वो लोग माने फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर लकड़ी ये सब के ऊपर चलाते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि उन लोगों का कुछ स्किल्स है, जैसे किसी का हैंडलूम का स्किल है, किसी का एरी रियरिंग का स्किल है, किसी का सूता निकालने का स्किल है। तो वो सब स्किल को कैसे हम लोग उसको प्राइमरी इनकम में कन्वर्ट कर सके और उनमें से उनको प्राइमरी इनकम तक उनको ले आ सके, ताकि इन लोगों का एक ये रहे, माने एक इंटरेस्ट रहे इस काम पे
क्योंकि आदमी तब भी इंटरेस्टेड होगा जब ये इनकम उनका प्राइमरी इनकम में कन्वर्ट होगा। तो हम लोगों का मोटिव वही है कि हम लोग कैसे उनको एक प्राइमरी इनकम दे सके। अभी वीविंग में हम लोग यहाँ पे एक कम्युनिटी सेट बैठाया है, जिसमें हम लोगों ने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया है, जो हम उन्नत मशीन यूज करके वो लोग अच्छा एक महीने का वो कमा सकते हैं, जो स्टॉल हो गया, शॉल्स हो गया, और उसको मार्केटिंग ब्रांडिंग हम लोग एवीए क्रिएशंस के ब्रांड के नाम से करते हैं। और हम लोग बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ भी टाई अप किए हैं, ताकि वो लोग हर फ्राइडे को एटलीस्ट हैंडलूम फ्राइडे मनाएं, ताकि हर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अगर हर सप्ताह में एक भी हैंडलूम पहने तो हम लोग का वीवर जो भाई बंधु है उन लोगों का जीविका चलता रहे। तो एक अच्छा हम लोग को एक रेस्पॉन्स भी मिला है। जैसे आजकल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हम लोग का एरी स्टॉल्स, एरी स्टॉल, नेचुरल स्टॉल का डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। तो वो सब है, माने स्कोप तो बहुत है इसमें, लेकिन अब मैंने लोगों के पास अवेयरनेस को ले जाना है, और लोगों को अवेयरनेस के साथ जो ग्राउंड में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को कैसे हम लोग जीविका में उनका सहभाग ले सके इस हम लोग के इनिशिएटिव से, वही हम लोग का मेन मोटो है। तो वैसे ही हम लोगों ने एवीए क्रिएशन को स्टार्ट किया था 2017 में। तो उस टाइम में हम लोगों ने खाली 3 लूम से स्टार्ट किया था, उन लोगों का ट्रेनिंग दिया था। अभी हम लोग उसको बढ़ा के जो हम लोग का कम्युनिटी सेंटर में 16 लूम हम लोगों ने किया है, और उसमें हम लोगों का 16 वीवर्स है, लेकिन वो कम्युनिटी सेट में है, और बाकी जो विलेज क्लस्टर में है हम लोग का 245 फैमिलीज के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो एरी रियरिंग, एरी वीविंग और एरी स्पिनिंग के साथ जड़ित है। Okay, so Arup, I know the challenges what you have faced and whatever the आपका जो भी mitigation का solution आपने लाया है, that is fantabulous according to us. So I would like to know how the idea of AVA creations came. Means you did you were from a separate background. You are not from handloom sector, and how did the idea of creating such a company and creating such a brand came in your mind? I belong to a village called Swalkusi, and Swalkusi is known for Assam silk. And मैंने वो बचपन से वो सब चीज को देखा हूँ, और वो मेरा एक अंदर ब्लड में है कि हम वो मैंने उसी कास्ट को बिलोंग करते हैं। हम लोग का पिताजी भी मैंने वो हैंडलूम बिजनेस में ही, वो यार्न का बिजनेस करते हैं। तो हम लोग का वो मैंने बिजनेस का सेंस तो था, लेकिन कैसे इस बिजनेस को हम लोग सोशली एक इंक्लाइन होके एक किसी का जीवन में हम लोग कुछ सहभाग भी ले सकते हैं उसका जीविका निर्वाह के लिए, तो उसको कैसे करें उसके लिए हम लोगों ने, जैसे मैंने माइक्रो फाइनेंस में काम किया था उस टाइम में मेरा वो सोशल बैन मेरा अंदर आ गया था कि हम लोग को सोसाइटी में कुछ एक करना है। तो सोसाइटी में क्या करना है, उस टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स को फॉलो किया। फिर ये 3 साल लगा एक मॉडल को हम लोगों ने अलाइन करने में, बहुत चेंजेस भी किए, बहुत मैंने हम लोगों ने सीखा भी, बहुत कुछ किए, बहुत सक्सेस भी हुए, बहुत अनसक्सेसफुल भी रहा हम लोग का जो ये था इनिशिएटिव था, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। और रिसेंटली हम लोगों ने एक हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर भी यहाँ पे बनाया है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग का कम्युनिटी शेड है वहाँ पे ही, ताकि जो टेक्सटाइल एंथुसियास्ट है वो लोग आ सके वहाँ पे, सारा टेक्सटाइल्स का नॉलेज ले सके, टेक्सटाइल खरीद सके वहाँ पे। एटलीस्ट वो ये करने से क्या होगा, उन लोगों को हैंडलूम के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ेगा। Right, right, very good. So the next question would be कि आभा क्रिएशंस जो आपने शुरू किया है, who are the basic customers for it, and what is the USP for your brand, that why any person would neglect other brands which are there in India? So many brands are there in India in handloom sector, many shops, many such showrooms are there, but why Abha Creations would be one of the interesting area where people can come and experience their wearing, and they can go ahead with whatever you have in your plans and you have as your products. एक्चुअली आभा क्रिएशन एक हम लोग का ब्रांड नहीं है, एक हम लोग का एक सपना है जो अभी मैंने एक अभी प्रिलिमिनरी बेबी स्टेप ले रहा है। इसको हम लोग और बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। हम लोग का सपना है हर एक फॉरेस्ट विलेज जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जो जिसका टूरिज्म इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे हम लोग का एक एक सेंटर बैठे, उस सेंटर के साथ एक एक एक्सपीरियंस सेंटर बैठा है,
ताकि हम लोग इसको एक अच्छा, माने जो जंगल के पास में जो लोग रहते हैं उनको एक अच्छा लाइवलीहुड दे सके, और इसका जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका हम लोग एक ब्रांड के थ्रू ऑल इंडिया में मार्केटिंग कर सके। और अभी हैंडलूम का डिमांड है, और वो डिमांड को सफाइज करने के लिए अभी और प्रोड्यूसर को आगे आना होगा। खाली एवीए क्रिएशंस अभी है, और एवीए क्रिएशन जैसा बहुत ब्रांड है जो इसको एथिकल कंज्यूमरिज्म को आगे ले जाने में बहुत अभी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ सभी का एफर्ट लगेगा, ये खाली एवीए क्रिएशन अकेले नहीं कर पाएगा। जितना भी ब्रांड है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि लोग अवेयर होंगे तभी हैंडलूम का रेस्पेक्ट बढ़ेगा, और हैंडलूम का रेस्पेक्ट बढ़ेगा तो हैंडलूम सेल और बढ़ेगा, और हैंडलूम का जैसे ही सेल बढ़ेगा तो हम लोग के जो ग्राउंड में लोग हैं उन लोगों को जो इनकम लेवल है वो भी और बढ़ेगा। तो वो एक ये है। और हम लोग का एक क्या है कि जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं, तो ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे लोग जो अपना स्पेंडिंग का इम्पैक्ट देख सकते हैं, ताकि मैं जो स्पेंड किया आज, जैसे मैं कोई भी आज शर्ट खरीदता हूँ, कोई भी ये मैं कपड़ा खरीदता हूँ, तो उसका एक स्पेन तो मैं करता ही हूँ, लेकिन उस स्पेन का इम्पैक्ट क्या है। अगर मैं मान लीजिए कोई भी एक एथिकल ब्रांड से मैं वो खरीदता हूँ, तो वो क्या होगा कि मैं उस ब्रांड के थ्रू मैं कितना ह्यूमंस को वो इंटरवेन दे सकता हूँ, क्योंकि आप भी सबको ही जानते हैं हैंडलूम एक लेबर इंटेंसिव माने जॉब है, और हर स्टेज में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे योगदान रहता है। तो अगर एक कपड़ा हैंडलूम का सेल होता है तो उसका माने भाग जो स्पिनर है उसको भी जाता है, जो रियरर है उसको भी जाता है। तो एक बहुत ये एक चेन है, और हैंडलूम एक ऐसा ये है, अगर हम लोग नेचुरल फाइबर यूज करते हैं तो हेलो Yeah, yeah, हाँ हेलो हाँ, yeah, yeah. हम लोग जैसे अभी हम लोग का जो फोकस है हैंडलूम माने सबके लिए, और हैंडलूम जैसे एंगल में माने पहले तो हैंडलूम ओकेजनल वेयर के हिसाब से ही यूज होता था, जहाँ पे ओकेजन हुआ तो वहाँ पे हैंडलूम पहनते थे। लेकिन अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हैंडलूम को हर एक क्षेत्र में लेके आए, जैसे शर्ट हो गया, होम फर्निशिंग हो गया, या माने आपका बेबी वार्प हो गया, या विभिन्न प्रोडक्ट जहाँ पे हम लोग हैंडलूम को यूज कर सके। Right. हेलो Very good. So we got to know many things about Abba Creations, how it turned to be a brand, and how it can compete with the other brands in our country. I got to know that Abba Creations also have a social development wing, which is called as Abba Foundation. So, if you could यस put some light on that यस and share how Abba Foundation is also creating sustainable impact along with Abba Creations. यस एक्चुअली हम लोग का ये जो ब्रांड है वो जॉइंट एफर्ट है मेसर्स एवा एंड मेसर्स एवीए फाउंडेशन के बीच में। और एवीए फाउंडेशन हम लोग एविएशन को डोनेट करते हैं, ताकि वो फाउंडेशन हम लोग का जो सिपिनी भाई बंधु है उन लोग ट्रेनिंग हो गया, उन लोग के बच्चे के लिए समर कैंप हो गया, या उन लोगों को नेचुरल डाई का ट्रेनिंग वगैरह देना है, या स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग हो गया, उन लोगों का वो सब काम के लिए हम लोग सहभागी करते हैं। मेडिकल कैंप हो गया उन लोग का, तो इस हिसाब से हम लोग उस एक सोशल हम लोग तो बाद में इसको क्या करेंगे कि एक वीवर असेंबल माने एक वीवर का एक पूरा समूह हो जाएगा एवीए फाउंडेशन। तो उसमें क्या होगा कि उन लोगों को बाद में जैसे हम लोग माइक्रो इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी हम लोग प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि उनका कुछ एक कवरेज हम लोग कर पाए। Okay, good. So, our foundation is also doing something for the weavers from whom this our creations is sourcing their productions or the products. So, how do you see that our Yes. creations as well as our foundation is sustainable? Means, what are the features of your sustainability that you maintain and you follow? एक्चुअली हम लोग का जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोग गांव में जो हम लोग का एरी का जो रियर है उन लोग का एक प्रोड्यूसर ग्रुप है, एरी का स्पिनिंग का उन लोग का एक प्रोड्यूसर ग्रुप है, जो फाउंडेशन
उनके अंदर में है, तो एक एसएचजी मॉडल में ले आके उन लोगों का जैसे भी कुछ भी खरीदना होगा, हम लोग लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। उस ब्रिज लोगों के ग्रुप में उसका हम लोग का क्या होता है, एक विलेज एक प्रोडक्ट में ही हम लोग काम करते हैं। जैसे एक विलेज में हम लोग अगर रियरिंग करेंगे, उसमें हम लोग खाली रियरिंग पे ही ध्यान देते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ कुछ उनको और इंटरवेन करने के लिए, जैसे पहले कुछ कुछ हम लोग के यहाँ पे वो एरी का होस्ट प्लांट का प्रॉब्लम था, तो हम लोगों ने यूएनडीपी के साथ मिलके ही हो या दूसरा अन्य सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिल के हो, उन लोगों के लिए हम लोग वो लिंकेज का काम करने के लिए एविया फाउंडेशन को हम लोगों ने ये किया है, मैंने एक मैंने प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये किया है, ताकि ये लोगों का एक सस्टेनेबिलिटी रहे। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो भी बनेगा, मान लीजिए आज कुकून बनता है या फिर कुकून से आपका यार्न बनता है, तो एक ग्रुप का जो प्रोडक्ट होगा दूसरे ग्रुप का वो रॉ मटेरियल है, तो उस हिसाब से ये पूरा साइकिल जो है ये आप सस्टेनेबल हो जाता है। ये जो रियरिंग करते हैं उसका मैंने प्रोडक्ट हो गया कुकून, और जो है उसका मैंने रॉ मटेरियल हो गया कुकून, और उसका प्रोडक्ट हो गया यार्न। अभी वीविंग ग्रुप का आपका जो ये है आपका प्रोड्यूसर ग्रुप का जो रॉ मटेरियल है वो यार्न हो गया, और उनका जो प्रोडक्ट बन गया वो फैब्रिक। तो अल्टीमेटली ये एक पूरा सस्टेनेबल एक चेन के माध्यम से आपका पूरा कुछ ये चलता रहता है, ताकि एक पैसा का वो रोटेशन रहे और एक सस्टेनेबल एक इकोसिस्टम में ये सब चलता रहे। Great, great. So, I would like to know something more about the scalability or the replicability of your model. Means how Abba creation can be scalable, and if anyone else want to do a job like you, then how they can replicate your model. Means if there is any sharing capacities of Abba creations or the technical supervision or technical ideas if Abba creation can give. Basically how this is a scalable model, and how you see can it is a replicable model as well. अभी अगर हम लोग लास्ट 2-3 साल का अगर हम लोग एक्सपोर्ट वो, तो इंडिया का 60% एक्सपोर्ट जो सिल्क में होता है वो होम फर्निशिंग में होता है, और एरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खाली 98% हम लोग का असम में ही वो उगता है। अगर हम लोग एरी सिल्क को एक अगर अच्छा एक रॉयल कलेक्शन बना सके, एरी सिल्क हो या मुगा सिल्क से अगर होम फर्निशिंग का एक अच्छा ये कर सके, और वो एक्सपोर्ट जो ये है टारगेट है उसको 60% से एटलीस्ट 80% तक भी ले जा सके, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे विंग का जरूरत होगा। जैसे अभी एविया क्रिएशन एक अकेला वो नहीं कर सकता है। एविया क्रिएशन को मैंने उस हिसाब से एक जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है जो इंडिया हैंडलूम ब्रांड का है, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट बनाने के लिए और मैंने ऐसा हम लोग के जैसे ऑर्गेनाइजेशन का और जरूरत पड़ेगा। तो जैसे ही वो मैंने वॉल्यूम के लिए कुछ भी काम वॉल्यूम में मैंने हम लोग को करने के लिए हम लोग एक मान लीजिए कोई भी ऑर्डर आता है एक्सपोर्ट का, वो एक वॉल्यूम में आता है। वो वॉल्यूम में करने के लिए हम लोग को साथी का जरूरत होगा। तो वो साथी हम लोगों का अगर हम लोग का ट्रेनिंग हम लोगों का वो मैंने मेंटरशिप में वो आगे आगे जाए, तो एक बहुत मैंने स्कोप है कि हम लोग को 60% जो एक्सपोर्ट अभी है चल रहा है उसको 80% तक हम लोग स्केल कर पाएंगे। Okay, so what are the challenges you are facing for this scalable thing? Means if you want to do scalable at this very moment, then what are the challenges you are facing right now, from government ends also, from customer ends also, or from the supply chain Right side now, also? right now we are working in our first pilot. Our first pilot we have done in Diporpil. So we have माने हम लोगों ने 3 साल में ओनली हम लोगों ने फॉरवर्ड लिंकेजेस में काम किया है। अभी हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस में काम कर रहे हैं। तो बैकवर्ड लिंकेजेस में काम करने के बाद वो मॉडल जैसे हम लोग पूरा उसको फुल प्रूफ मॉडल के हिसाब से हम लोग उसको ये करेंगे और मैंने पूरा रेप्लिकेट करने के लिए, तो उसके बाद हम लोग मैंने असम में जो हम लोग का 17 ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो सब में एक रेप्लिकेशन। Okay, हेलो, yeah, yeah.
Okay. So, can you share some success stories that you are working with around 350 families who are weaving for you, who are doing various work for your company and initiative? So, can you share some success story that a person's life has been totally changed, and how Ava Creations has added value in his or her life, or for family collectively? If you can throw some light over there. आई विल शेयर हम लोग के यहाँ पे जो हम लोग के पास में ही जितने वीवर है उन लोग का पहले जो लाइफस्टाइल था उन लोग का जैसे मैंने क्या होता है कि अगर फैमिली में लेडीज इनकम करते हैं तो वो उनका डिसीजन पावर फैमिली के ऊपर रहता है। तो वो मेन इशू है। हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं उसमें हम लोग वो ट्राई करना चाहते हैं कि वुमेन अगर थोड़ा सा वो फाइनेंशियली उसमें फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जो फैमिली का डिसीजन मेकिंग में उनका भी एक सहभाग होता है। तो वो एक चीज है। सेकेंड ये है कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब हम जो 2017 में जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सैलरी उनको दिया था उस टाइम में हम लोगों ने वही उनको सिखाया था कि आपके जो ये है मैंने सैलरी है उसमें से आप कोई एक एसेट डेवलप करो ताकि आपका जो आगे मैंने फैमिली आपको पूरा सपोर्ट दे। तो इनिशियली तो बहुत प्रॉब्लम था। पहले तो उन लोगों के घर में जो हस्बैंड थे वो माने उनका जो घर में जो गाय बकरी था उन लोगों को नीचे वो जैसे हम लोग का पहाड़ के ऊपर है ना हम लोग का सेंटर तो आसपास में ही सारा फैमिलीज वगैरह रहते हैं। तो जितने भी उन लोग के गाय बच रहे हैं वो नीचे उन लोगों को गेजिंग के लिए छोड़ आते हैं। लेकिन वो भी लेडीज ही जाते थे, पहले लेडीज ही लेके आते थे। लेकिन जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सैलरी दिया उनको बोला कि आप कोई भी एक एसेट खरीदो। मैक्सिमम लोगों ने बच्चे के लिए चाहिए कुछ एक साइकिल ले लिया, घर के लिए टीना वीना वो सब ले लिया। तो उसमें क्या होगा फैमिली का एक मैंने उनको दिखा कि इनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो नेक्स्ट टाइम से क्या हुआ कि वो अपना बच्चा स्कूल में जाता है तो वो गेजिंग के लिए वो गाय को भी ले गया। तो हस्बैंड अगर मैंने वो बीवी अगर काम पे है तो हस्बैंड खुद अपना खाना निकाल के खुद खा लिया। सेकेंड ये कुछ कुछ लोग यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है कि आपका कंट्री लिकर वगैरह वो बनता है। तो जैसे ही हम लोग का ये इंटरवेंशन हुआ तो इंटरवेंशन होने के बाद उन लोग वो सब छोड़ दिए ताकि उनका डिग्निटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले वो सब काम में उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग के सेंटर में बहुत लोग आते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन लोग डायरेक्ट बात करते हैं, उन लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग को देखने के लिए भी लोग बाहर से आते हैं। पहले तो वहां पे हम लोग का रास्ता भी नहीं बना था ऊपर तक। अगर 2017 में जब हम लोगों ने वहां पे सेटअप किया था कम्युनिटी सेंटर तो गाड़ी ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हम लोग का मैंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एमएलए का जो सपोर्ट रहा तो उन्होंने विद इन मैंने 2 इयर्स में ही रास्ता बना दिया। वहां पे पीने का पानी का प्रॉब्लम था कि हर मैंने फैमिली में जो छोटा बच्चा है वो भी सुबह सुबह वो एक 5 लीटर वाला जार लेके पानी लेके के लिए जाता था नीचे, तो पानी का प्रॉब्लम था। अभी कम्युनिटी बोरिंग हो गया तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक अगर ऐसा सोशल एंटरप्राइज कहीं पे बैठता है तो उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ में बहुत तरह के तरीके से आता है। खाली एक एक दो सक्सेस स्टोरी नहीं, ये पूरा कम्युनिटी का सक्सेस स्टोरी होता है। हेलो। Yeah. Great. Good. So I can see that Anu has already joined. So can I request you to kindly unmute yourself and यस यस श्योर। yeah. So yeah. Hi, Hi Anu. इंद्रनील Hi. So and everyone good. काफी लेट हो गया, मैं बहुत लेट से ज्वाइन कर पाई। no issues. Is this audible? Audible, Yeah, इंद्रनील? 100% it is audible. So Anu, I want just to ask few हाँ जी। questions to you as well. That Arup said Okay. that how Ava Creations idea came to your mind, and how you have also created some shared value with Arup to make this brand which is now itself.
So I just want to know what are your thoughts for our creations, that how during building this as a brand, what are the challenges have you faced, and how did you mitigated those challenges, and what was the involvement of the community into your challenge mitigation? Because that is very important if we consider that community organization is getting built, and now Ava Creations is almost a brand, and many people know Ava Creations in not only in northeastern sector but also across eastern sector as well, even most parts of the country. So if you can throw some light on how Ava Creations has been builded, and what was the involvement of the community. Hello. Hi. Yeah, yeah. Have you got हेलो my हेलो question? या हाय इंद्रनील. हाँ जी, Yeah. आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, we can hear हाँ you. इंद्रनील जी, आप पूछ रहे थे क्या? यस, आपने पूछा था व्हाट आर द चैलेंजेस. एक्चुअली Hmm. लाइक मेरा आपका आंसर थोड़ा अलग तरीके से होगा, क्योंकि लाइक जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां पे हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, नॉट द चैलेंजेस. ऑलवेज अगर हम चैलेंज प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे तो हमेशा आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, और जब हम अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे तो हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखेंगे. हेलो Yeah. Your voice is हेलो, breaking actually. Hello. या कनेक्शन इज वेरी पुअर. बारिश हो रही है यहाँ पे इसलिए शायद. Okay. So तो yeah. So इंद्रनील, वही मैं बोल रही थी. hmm. या हम लोग लाइक मैंने तो इस पूरे के पूरे वेंचर को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया, एंड द स्टार्ट भी हमारे बैक ऑफ माइंड में यही था कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लॉट्स ऑफ वर्जिन एरियाज आर देयर. बहुत सारी वर्जिनिटी है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स थी वहां पे, लाइक अभी भी है काफी सारी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स. एंड आपका सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज. लाइक हम जैसा सोचते हैं इन जेन्युइनली ऑन ग्राउंड वैसा होता नहीं है. हम जो प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं उसको बनाने के टाइम पे लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर, तो दोज इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत से कनेक्शंस है जिसको हमें जॉइंट आउट करना पड़ेगा. लाइक यहाँ पे हमें लगता है इसको लाइक प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में तब ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जब सारे के सारे पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड द इंडिविजुअल्स ऑल्सो, वो सारे के सारे सिंगल रूप में आकर के एक माइंडसेट के साथ काम करे, ना कि सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के. अभी हम लोग बार बार यही बात कर रहे हैं कि आभा क्रिएशन नो डाउट एक ब्रांड लाइक, बट हमारा मेन जो विजन है इज हैंडलूम फॉर ऑल. इट्स नॉट द कि हैंडलूम फॉर आवर लाइक द हैंडलूम्स ओनली फॉर आवर क्रिएशंस, ऐसा नहीं है. हमारा है हैंडलूम फॉर ऑल. वो चाहे कोई भी बनाए, चाहे वो आज बंगाल में बन रहा है, चाहे वो बिहार में बन रहा है, या चाहे वो कश्मीर में बन रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी रीजन में बन रहा है. बट हम सबको, ईच एंड एवरी कंज्यूमर जिसको भी थोड़ा भी फैब्रिक का नीड है, तो वो डेफिनेटली अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके आसपास हैंडलूम मिलती है, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस हैंडलूम को देना चाहिए. और हैंडलूम इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्केलेबल बिजनेस की. जब हम स्केलेबल बिजनेस की तब बात करेंगे जब हम खुद उस चीज को स्केल अप करेंगे. हम चीजों को जब कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा ईच एंड एवरीथिंग, माँ का अचार भी चल जाता है बॉस, पापड़ भी हम बेच लेते हैं. इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा तो हमें पहनना ही पहनना है. हम अचार खाए बिना रह सकते, पापड़ खाए बिना रह सकते, कपड़ा पहने बिना हम नहीं रह सकते हैं अभी के सोसाइटी में. तो दैट इज द कल्चर. तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे स्केलेबल, लाइक बात ही नहीं आती स्केलिंग की, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप में ऐसा है कि हम हर एक को सपोर्टिंग हैंड में लेकर के जा रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जब हम हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एनर्जीज को बहुत कम यूज करते हैं. यहाँ पे हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बहुत सारा है. हम अपने नेचर को यूज कर रहे हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि हमको नेचर को यूज करना है एंड उसको प्रिजर्व भी करना है. दोनों चीजें हैं. अगर हम नेचर को यूज नहीं करेंगे तो वो जंगल बन जाएगा, और जंगल की जरूरत हमें उतनी ही होती है जितना वो देखने में खूबसूरत रहता है. हम जंगल के अंदर रह नहीं सकते हैं, तो हमें True. चीजों को यूज करना भी आना पड़ेगा. तो दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने फॉरेस्ट एरियाज को चूज किया.
क्योंकि हमें हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत हम लोग रिच है फॉरेस्ट एरियाज को लेकर के, वी आर वेरी रिच। एंड हमारा जो कल्चर है लाइक द हमारा जो ट्रेडिशनली हमारा जो एडुकेशन है लाइक द दोज आर द, जैसे कीड़े को पालना, प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, सब चीज के बारे में। तो हमारे जो ट्राइबल्स हमारे लाइक ह्यूमन बीइंग्स है ट्राइबल लोग, तो उनके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइक द उनके लाइक फोर फादर से ही उनके पास बहुत सारे ऐसे हिडन और अनहिडन बोथ, लाइक उनको पता भी नहीं होता बट उसको उस चीज के बारे में वो कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्वालिटीज है जो इनकेस नहीं किया है अभी तक, ट्रांजेक्शन्स में हम नहीं ला पाए हैं। तो हमारा मेन मोटो यही है कि उनका जो स्किल है वो स्किल को थोड़ा अपग्रेड करें एंड उसको ट्रांजेक्शन मोड में लाए, जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग की बात करेंगे, जहाँ पे हम तब आभा क्रिएशन ब्रांड उसके अंदर में अभी तो हम लोग सिर्फ फैब्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम लोग वो सारे के सारे हैंड होल्डिंग प्रोडक्ट्स के बारे में डील करेंगे जो हमारे नियर बाय हम बना सकते हैं या हमारे नियर बाय मिलता है हमें। उन सबको पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड द प्रमोशन एंड द इवन द अवेयरनेस आल्सो विद द कंज्यूमर। लाइक ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब हमके अवेयरनेस ऑफ लाइक द कंज्यूमर के पास कितना अवेयर है, वो क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट ही उनको क्यों यूज करना चाहिए, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन like the man-made fiber or the natural fiber। ये सारे की सारी चीजों के बारे में हमारे कंज्यूमर भी उतने अवेयर नहीं है जितना अवेयर होना चाहिए था उनको। जिस तरह से अभी हमारा कल्चर भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, अभी धीरे धीरे हम लोग फिर से बैक टू द पेविलियन आ रहे हैं, अपने बारे में सोचना शुरू किया है हम लोगों ने, अपने फोर फादर्स के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में। जैसे योगा अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमारे आसपास जितने पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जानकारी अभी बहुत ज्यादा मिल रही है, गूगल पे जाएंगे या सोशल साइट्स पे जाएंगे। उसी तरह से नेचुरल फाइबर्स के बारे में भी लोगों को जानकारी बहुत ज्यादा मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि फैब्रिक ऐसा है इंडस्ट्री के बाद में कि वो सबसे बड़ा गार्बेज हमारा क्रिएट कर रहा है होल वर्ल्ड में। सबसे बड़ा कचरा हमारे कपड़े ही क्रिएट करते हैं, और कपड़े के वजह से क्या हो रहा है कि हम एथिकल परचेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कपड़ा हमारे लिए कचरा बन रहा है। बट अगर हम जहाँ नेचुरल फाइबर और एथिकल परचेज करना चालू करेंगे तो वही कचरा हमारे मदर अर्थ के लिए प्रोटीन का काम करेगा। So that's Right. the big reason that we should go for the handloom, we should go with the handicraft, and we always support the this kind of ventures, चाहे वो कोई भी कर रहा है, कितना भी बड़ा से कर रहा है या छोटा से कर रहा है। एंड एज ए कंज्यूमर्स हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप भी हो, और जितने भी लोग हैं वो सब कंज्यूमर्स है, उनसे बस यही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वो खुद से सेल्फ अवेयर होए जब वो चीजों के बारे में। अभी जैसे हम लोग चाइना और इंडिया की बात करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें पता चल रहा है क्या 680 is the India code and the 860 is the China code। तो उसको देखने के साथ साथ हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट मेड बाय द चाइना एंड दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय द इंडिया। वो मुझे आज पता चला। तो इस तरह से ना कि हाँ ये प्रोडक्ट का इसका अवेयरनेस ये है, इस फैब्रिक्स का वो है, इस फाइबर के बारे में ये है, तो थोड़ा सा हम अपना नॉलेज को और थोड़ा बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ईच एंड एवरी वन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी आपको अगर इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो आप उसका बॉदर ना करें, ना कि आप सिर्फ हम लोग मतलब मैसेजेस को शेयर करने से बेटर है इन्फॉर्मेशन को हम खुद से शेयर करें, अपने इन्फॉर्मेशन को जो आपके नियर बाई लोग लाइक दे रहे हैं। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ पोस्ट डालते हैं तो वहाँ पे हमें लाइक्स नहीं मिलता है। आपको पता है गूगल उसी को शो करता है जिसको जितना ज्यादा लाइक्स मिलता है। तो हम वो बोल रहे हैं कि आप हमारे हमारे मैसेज को आप पढ़ो, अगर आपको लग रहा है दिस मैसेजेस आर द जेन्युइन, दिस फोटोग्राफ्स आर द जेन्युइन, दिस प्रोडक्ट्स आर द जेन्युइन, तो आप उसको प्रमोट करो। आप प्रमोट करोगे तो आप अपने ही बिजनेस को स्केल कर रहे हो। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर हमने उस विलेज में अगर हम काम नहीं करते, ये हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर वो विलेज में जाके काम नहीं करेंगे तो एक दिन उसमें से अगर हमारे 350 फैमिलीज में से अगर कोई भी 2 बच्चा अगर टेररिस्ट बन जाता है तो वो पूरे के पूरे कम्युनिटी नहीं, पूरे के पूरे इंडिया को खराब कर सकता है। अगर 2 अल्कोहलिक पर्सन अपने फैमिली, अगर हमारे कम्युनिटी से 2 या 3 अल्कोहलिक पर्सन आता है तो हो सकता है कल आपके बच्चे को वो किडनैप करके लेके चला जाए, हो सकता है कल आपकी गाड़ी को चोरी करके ले जाए। बट हम लोग वो कर रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो ह्यूमन रिसोर्सेज एक राइट वे में रहे विद द नाइस माइंड एंड विद द नाइस सोल। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम उनका इनकम सोर्स को जनरेट नहीं कर रहे, हम उनके माइंड एंड सोल को भी हम उनका पॉलिश कर रहे हैं, जिससे हमारे कम्युनिटी में इस तरह के जो है थॉट प्रोसेस, इस तरह के जो काम है, जिससे उनको लगता है कि शॉर्टकट वाला इनकम जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए। जब उनका इनकम रेगुलर हो जाएगा डेफिनेटली उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शॉर्टकट वाला इनकम। तो यहाँ पे आप सारे शायद मैंने लग रहा है कि मैं अपने बहुत भावुक होकर के सब कुछ आंसर कर दिया इंद्र जी।
नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मतलब आपने एकदम, मैंने शुरू से अरूप से जितना भी बात किया है, वॉट एवर आई हैव टॉक, ऑल ऑफ देम यू हैव कवर्ड इन अ सिंगल पॉइंट। सो थैंक यू फॉर दैट। सो आई वुड लाइक टू, आपने जैसे कि बोला कि कम्युनिटी में या फिर कंज्यूमर्स में उतना नॉलेज नहीं है कि व्हाई दे शुड यूज द हैंडलूम प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे आभा क्रिएशंस, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कंज्यूमर अवेयरनेस जनरेशन। मतलब आभा अगर कुछ कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ताकि कंज्यूमर्स अवेयर हो सके एंड दे कैन कम फॉर अडॉप्टिंग दिस हैंडलूम प्रोडक्ट्स। या या कैन यू हियर? या इंद्र, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आपको क्वेश्चन सुनाई दिया मैं था? बोल रही थी, हम लोग कंज्यूम, हाँ जी, क्वेश्चन मुझे सुनाई दिया था। या तो अभी जैसे आपने जो क्वेश्चन आपने किया है, लाइक अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर ना, तो हम लोग ने फर्स्ट 3 इयर्स में जो काम किया था, हमारा जो अपने प्रोजेक्ट का हमारा जो असेसमेंट था, फर्स्ट ईयर में हमने काम किया था क्या हमारा लाइक जो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम, हमको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि कंज्यूमर को स्किल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हैंडलूम में जैसे बोलते हैं ना, यूनिफॉर्मिटी, आप एक पीस को ऑर्डर दोगे, सेकंड पीस अगर आप सेम मांगोगे तो आपको नहीं मिलता है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है। तो दोज आर द प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट स्किल के ऊपर काम किया था फर्स्ट 1 ईयर, ताकि हमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स हमें मिल सके। तो हमने अपने वीवर्स और अपने हमारे जितने वर्कर्स हैं उनके साथ में हमने स्किल अपग्रेडेशन का काम किया। सेकेंड ईयर में हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलप किया। जब हम बात कर रहे हैं हैंडलूम फॉर ऑल, तो हैंडलूम फॉर ऑल के लिए हम फैब्रिक पर्सन्स और हम प्रोडक्ट डेवलप कर सके, हम क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स डेवलप कर सके। तो सेकेंड ईयर में हमने उसके ऊपर काम किया था। थर्ड ईयर में काम किया था हमने उनको हर एक के पास पहुंचाने का, लाइक जैसे अवेयरनेस जो आप बोल रहे हैं ना, तो अवेयरनेस से पहले ये था कि आप एटलीस्ट लोग उनको यूज करें, दोस प्रोडक्ट्स को यूज करें। तो हर एक के पास पहुंचाने के लिए हर एक की तरह प्रोडक्ट बना करके हमने लाइक सोशल साइट्स हो, आपका गुडविल में हो, आपका पर्सनल एग्जीबिशन है, गवर्नमेंट सपोर्ट्स के साथ में, तो हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया। अभी जो हमारा लास्ट वाला चल रहा है, दोज द ओनली द लाइक द अवेयरनेस एंड द आपका लाइक डोमेस्टिक मार्केट में अपने आप को प्लेस करना। जैसे पैंडेमिक से पहले ये था कि हम लोग डिजायर बेस्ड प्रोडक्ट बनाते थे, लाइक वी थॉट क्या हैंडलूम इज एन आर्ट एंड द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, लाइक आपको पता है कि हैंडलूम में ईच एंड एवरी इंच को आप यूनिकनेस बना सकते हैं, दोज द क्वालिटी ऑफ यूएसपी ऑफ हैंडलूम। तो उसके वजह से हम लोग का हर एक पीस बहुत हाई कॉस्टली हो जाता था। तो दोस्त यहाँ पे हमारा वो हैंडलूम फॉर ऑल वाला विजन में कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम्स ला रहा था। तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि कस्टम थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, क्या हमें उसका फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट में वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अल्टीमेटली बाइंग एंड सेलिंग। या so you are not audible, Anu. I think there is some internet issue. Yeah, so I would like to ask a question for Arup now. So, Arup, could you let us know if you would like to share your thoughts for some people who want to join and start this kind of आप सुन रहे हो initiatives? इंद्रनील? Yeah, I can hear. I can hear. क्या क्या बोल रहे हैं इंद्रनील? I was telling ki, if you would like to share some thoughts for the people who want to become a change leaders like you, then how they should start and what would be your mantra for them? इंद्रनील, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाई, आपका वॉइस ब्रेक Yeah, कर yeah, रहा yeah. था। So basically, I would like you to share some thoughts for the people who are joining here as well as in हाँ, Facebook. How if they want to also start this kind of business or this kind of initiative, so what could be the 5-step mantra for them? Means if you would like to highlight simple 5 points by which they can follow them and they can become successful like Abha Creations is now.
इंटरनेट लाइक द सक्सेस के तो कोई भी बने बनाए रेसिपी होता नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग रेसिपी होता है। फिर भी मुझे मेरे रेसिपी में मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, सबसे बड़ी बात है कि हमें आउट ऑफ बॉक्स जाना। फर्स्ट तो है कि आप अपने सेल से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने जो अपना जोन क्रिएट किया है, उस जोन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ और नया कर सकते हो। एज लाइक कि अगर आपको माँ बनना है तो आपका लड़की लड़की वाला गुण चला जाएगा आपके बॉडी से, तो तभी आप माँ बन सकते हो। तो वो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जिस माहौल में हूँ, जैसा हूँ, उसी माहौल में रह करके मैं दुनिया को चेंज कर दूं या अपने आसपास को चेंज कर दूं, तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ये है क्या, और हम लोग सोशल वेंचर के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हमें एक्सेप्टेंस लाना ही बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पहला पहला है कि अब अपने बॉक्स, अपने सेल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको चेंजेस लाना पड़ेगा मेरे लिए। दूसरा है एक्सेप्टेंस। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ही राइट रहे, ये जरूरी नहीं है कि जो रूल है वो रूल इज ऑलवेज राइट फॉर एवरीवन। मे बी कभी कभी रूल ब्रेक करना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप अगर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको रूल ब्रेक करना आना चाहिए इन द प्रॉपर वे में, किसी को हार्म किए बिना आप रूल ब्रेक करो। तीसरा है मेरा कि आप लॉ में रह करके अनलॉफुल काम करना आपको आना पड़ेगा। एज लाइक द, क्योंकि आपको कोई भी काम, हम लॉ की बात करेंगे, हम नियम की बात करेंगे, तो लॉ नियम में बहुत टाइम पे क्या होता है, एज ए बिजनेस हम जितना टाइम में उस नियम उस रूल को फॉलो करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे हमारा वो लाइक द वो एनर्जी ही खत्म हो जाता है, या वो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाता है। से हम किसी प्रोडक्ट के लिए पिचिंग कर रहे हैं, और जब हम बहुत रूल के अंदर से जाते हैं तो हमारा पिचिंग का वो लाइक रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाता है, कोई और उसको पिच कर होता है, क्योंकि हमको वे पता नहीं होता, डिफरेंट वे। तो आप रूल फॉलो करो, रूल को ब्रेक करो, बट आप लॉ को ब्रेक करो, बट अनरूल नहीं होकर के उसको वो आना पड़ेगा, लाइक द डिफरेंट वे ऑफ प्रोड्यूस योर थिंग्स, लाइक द प्रोड्यूस योर ओन थॉट प्रोसेस, प्रोड्यूस योर ओन अपॉर्चुनिटीज, प्रोड्यूस योर ओन प्रोडक्ट, तो वो आपको आना पड़ेगा। तीसरा है मेरे लिए क्या, आप एज ए वुमेन ये है क्या, हमें अपना राइट और अपना लेफ्ट हमें खुद पता होना पड़ेगा। कोई एज ए वुमेन मैं जब काम करती हूँ तो मुझे कोई दूसरा वो नहीं दिखा सकता है कि मेरा राइट ऐसा होना चाहिए, मेरा लेफ्ट ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्रंट ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कंट्रोल करना आना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं मेल एंड फीमेल, आजकल मेल भी बहुत ज्यादा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, वो भी अपने बच्चों को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर यहाँ पे हर एक दूसरे को, बट एक दूसरे को सपोर्ट के साथ साथ में छोड़ना भी आना पड़ेगा। नहीं, अभी मेरा ये बिजनेस में मेरा ये नीड ऑफ टाइम ये है, मुझे अभी उसमें टाइम देना है, तो मैं बाकी चीज को छोड़ सकूं, वो भी आना पड़ेगा एज ए वुमेन। एंड पांचवा बात है क्या, अपने ऊपर में बिलीव, फेथ करना है कि चलो हमने किया है, तो हम जब कुछ करेंगे तो वो अच्छा ही होगा, और अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो डेफिनेटली उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा होना है, इसलिए ये वाला उतना अच्छा नहीं हुआ है। बस मेरा यही 5 रूल है इंद्रनील। Very good, very good, very good, very well explained actually. थैंक यू सो मच। So for the I would like to end with a note that Handloom for All is a very good initiative or a very good thought for the consumers as well as for all of them. But affording those handloom, and that is an issue, and how the Ava Creations is also keeping that in mind, and they are also concentrating on various low cost products which they are bringing for many stakeholders, and right from many consumers at various point of levels. So it's a very great initiative, and we also learn इंद्रनील, from. इंद्रनील, I want to interrupt you. जैसे Yeah, आपने yeah. बोला ना, is the handloom for all is the little bit expensive and like the little bit ऐसा होता है, अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा जैसे कोई भी चीज का, जैसे आपको पता ही है डिमांड एंड सप्लाई का रोल, अगर हमें डिमांड हमारा प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा तो हमारा सप्लाई चेन हम डील कर सकेंगे एंड द प्राइस खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो अगर एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर, ईच एंड एवरीवन, अगर हम थोड़ा सा एक चीज का शपथ लेते हैं कि नहीं, हमें हैंडलूम यूज करना है, हमें जेन्युइन फैब्रिक्स यूज करना है, एंड हम उसको डिमांड अगर आप क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली उसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम नहीं Right, होगा, बहुत कम right, हो जाएगा। right, ईच एंड right. एवरीवन कैन अफोर्ड। पहले सब कोई हैंडलूम ही पहनते थे बॉस।
Yeah. हमारा दुनिया स्टार्ट ही हुआ है हैंडलूम से, ऐसा नहीं है कि हमें पावर लूम से स्टार्ट हुआ है। आप Yeah. देखो पावर लूम जब आप यूज करते हो ना, तो वहां पे कोई एक कैटेगरी ऑफ पीपल्स डेवलप, जिसके पास आपके करोड़ और द मिलियंस उनके पास पैसे होते हैं, या से लैक्स में उनके पास मशीनरीज खरीदने के पैसे होते हैं। वो एसेट्स आप बनाते हैं, उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा बिल्ड करते हैं, देन फिर आपका एनर्जी लगाते हैं, देन वो कुछ लोग, वो भी कुछ लोगों को काम देते हैं, ऐसा नहीं है वो लोगों को काम नहीं देते हैं। बट इशू यहाँ पे ये आती है कि वहां पे एक लाइक द कैटेगरी कोई मिल यहाँ पे है क्या, आपको विदाउट हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हमें नहीं चाहिए, और लेकिन हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल्स को उसका लाइक अर्निंग सोर्स हम दे सकते हैं, रिसोर्सेज हम दे सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है, एक पूरे के पूरे होल कम्युनिटी को इसका इफेक्ट मिल रहा है। और जब एक कम्युनिटी डेवलप होएगी तो हमारा पूरा का पूरा लाइक हमारा पूरे स्टेट को और हमारे पूरे कंट्री को उसका फायदा होगा। Right, right. Very true, very true. So, to end the session, I would like to thank you all for joining us today. So, the last thing I want to know you from Anu, that is, what are the products that you launched during this COVID times? Is there any special products that you have launched, and how people could be linked with that and take those benefits? इंटरनल लाइक द इन दिस कोविड सिचुएशन तो सबसे जरूरी हो रहा है हमारा फेस कवर और द फेस मास्क, सबसे ज्यादा ये हो रहा है। बट हमने देखा था कि हमने बहुत लेट से लॉन्च किया जब फेस मास्क को, तो सबसे बड़ी हमने भी मार्केट से ला करके ही स्टार्टिंग हमने फेस मास्क N95 से लेकर के नॉर्मल जो आपका मास्क होते हैं उसको हमने यूज किया था। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि हम उसको एक साथ पहन करके 10 to 15 मिनट्स तक बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और उसके बाद जब लाइक सब मोदी जी ने जब फर्स्ट हम लोग को लाइक उन्होंने गमछा पहन कर आया एंड देन देख आप गमछा को भी आप इस तरह से ये कर सकते हो, तो फिर हम लोगों ने हमारे एरी फैब्रिक्स को यूज करके हमने लाइक एरी नेचुरल डाई करके, क्योंकि एरी का एसेंस हर एक को पता है, उसकी क्वालिटीज पता है, उसकी मेडिसिनल वैल्यूज पता है, तो उसको हम लोगों ने बनाया एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो काफी अच्छा सब लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने मोर देन 8,200 पीसेस ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो वो काफी अच्छा एक रेस्पॉन्ड आया, एक बूस्टअप मिला हमें। एंड उसके बाद और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि जब उन्होंने मास्क को यूज किया एंड दे नो अबाउट द लाइक द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फाइबर एंड द अदर फाइबर्स, तो उसके बाद हमारा खुद ब खुद से स्टोर्स, साड़ीज, मेखला चादर्स, अदर प्रोडक्ट्स हमारा सेल आउट होना चालू हो गया कि नहीं, हैंडलूम में इतना अच्छा, इतना कंफर्टेबल चीज मिल सकता है, तो वी कैन यूज द हैंडलूम एज अवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि हम लोग ड्रेस मटेरियल्स, रनिंग मीटर्स, यार्ड्स बनाते हैं, तो वो फैब्रिक्स उन लोगों ने लेना चालू किया। हमारे जो कस्टमर्स लाइक 170 200 का मैक्स एक पीस ले रहे थे, वो हमारे पास से अभी 2000 से लेकर के 20,000 2 लाख तक का हमारे साथ परचेज कर रहे हैं। Very good, very good. So, तो ये thanks for. काफी अच्छा, बहुत अच्छा Yeah. हमको इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। Yeah. Okay, Thank you so thank you very much, both of you, for joining us today, and thanks to all the participants who are here in our platform. And we will release this video in YouTube as well very soon for its outer coverage other than these participants. So thanks again to both of you, Anu and Arup, for joining us today, and we hope that in years to come Apha Creations will be one of the trusted brands in India, and we hope that we can again come into a platform and we can create a shared value for the communities, and you are working means very good for the community through your foundation as well. Keeping the profit in a side, you are also thinking for the people who are co-creating for you towards the profit you are making. So it's a great venture, and our best wishes from Change Talks to both of you, and thank you for joining again. Thanks. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Keep safe.